पंजाब PCS प्रीलिम्स वास्ते ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਡੇ 2 ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਆਊਟ ਆਫ 5 ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ। And if you have watched this, do watch this session also on Punjab Geography. So we are going to discuss 5 questions of Punjab Geography. पहला सवाल है ऑन घग्गर रिवर। नॉर्मली ना बच्चों को सतलुज ब्यास रावी बारे पता होंदा है, घग्गर रिवर किते ना किते छुट जाता है। सो तुसी जे ये गलती कीती है तो ये तुहानू एग्जाम विच कॉस्ट नहीं करेगी बिकॉज यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो वी हैव अ क्वेश्चन विथ 3 स्टेटमेंट्स। तुसी दसनिया ने किहड़ियां स्टेटमेंट्स सही ने, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहली है द घग्गर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द शिवालिक हिल्स इन द हिमाचल प्रदेश। It flows through the states of Punjab, Haryana and Rajasthan. It eventually merges into the Arabian Sea near the Gujarat. Pause लेके अपना आंसर मार्क करो, एनालाइज करो and mark your answer like you would have marked in the examination. The correct answer is 1 and 2. पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट ओरिजिनेट्स एट दक्षाई इन शिवालिक हिल्स इन हिमाचल प्रदेश एंड इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये एक नॉन पेरिनियल सीजनल रिवर है जेड़ा कि इवेंचुअली राजस्थान विच वैनिशेस इनटू द थार डेजर्ट। सो दैट इज वाई द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि अरेबियन सी तक नहीं जाता है, राइट। सो ऑल द थ्री statements which all the 3 given statements which the third statement is incorrect because it dries up and vanishes into the Thar desert in Rajasthan, right? So this is the Ghaggar river and the length is 320 kilometers approx. Now moving on to the next question which is regarding Shivalik hills. Those statements ne again you have been asked which of the above statements are correct. First statement hai the Shivalik hills form the northeastern boundary of Punjab. They are the oldest and most stable part of the Himalayan system. Again अपना आंसर मार्क करो। The correct answer is 1 only. This is correct. It forms the northeastern boundary. But is the second statement correct? No. In fact, they are the youngest and most fragile mountains of the Himalayan region. In fact, ये बिल्कुल ही उल्टा है, right? So that is incorrect. And they run parallel to the Himalayan range. This is the Shivalik range and this is the Himalayan range. Third question is on the Beas river. 4 statements ne, how many of the above are correct? How many pucha hai, not which. The first statement is it originates from Beas Kund, jinnu Beas Kund bhi kaha janda hai, near Rohtang Pass in Himachal Pradesh. It flows through Kullu Valley and Kangra Valley before entering Punjab. The Beas River joins the Satluj River near Harike in Punjab. The total length of the Beas River is 970 kilometers. So एक statement to analyze करो। जे तुहानू ना पंजाब रिवर्स विच कोई भी डाउट है, I have made a video on YouTube. ओनू देख लो, बहुत ही छोटा वीडियो है बट काफ़ी होलिस्टिकली रिवर्स में एक्सप्लेन किया गया है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज ब्यास एंड रावी दोनों ओरिजिनेट करते हैं हिमाचल प्रदेश तो। सतलुज ओरिजिनेट्स इन टिबेट। हुण ये ओरिजिनेट करता ब्यास कुंड साउथ फेस ऑफ रोहतांग विच है इन हिमाचल प्रदेश। देन इट मूव्स थ्रू कांगड़ा कुल्लू वैली एंड एंटर्स पंजाब फ्रॉम तलवाड़ा इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर ये मर्ज करता है ब्यास नाल सतलुज नाल इन हरीके पतन, जिथे एक वेटलैंड भी है। हरीके बराज इज अ मैन मेड वेटलैंड विच इज़ वन ऑफ द 6 रामसर साइट्स ऑफ पंजाब। पंजाब में 6 रामसर साइट्स ने, 3rd हाईएस्ट इन इंडिया, राइट। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट ने। चौथी स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि लेंथ गलत है। सब तो ज़्यादा लेंथ सतलुज की है 1450 किलोमीटर्स, फिर उस तो बाद रावी इज़ 970 एंड ब्यास इज़ 470। सो दिस स्टेटमेंट इज़ incorrect. So 10 statements correct ne, so only 3 statements are correct, right? Then rapid revision round साडा मंडे तो शुरू हो रहा है, कल तो शुरू हो रहा है। इन्वायरमेंट तो असी शुरुआत कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव लाइव डिस्कशन जिसदे विच असी सारी इन्वायरमेंट कल ते परसों कवर कर लांगे। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइव डिस्कशन। तुहाडे कोई भी कंसर्नस ने, कोई भी डाउट्स ने, तुसीं पुछ सकदे हो। फिर तुसीं ये भी कहंदे बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड
कि ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 11+ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, so don't ignore that. So live classes of all the subjects plus you have 3 FLTs plus ਤੁਹਾਨੂੰ notes ਮਿਲਣਗੇ, so it is going to be a very holistic course at 3500 rupees. Now moving to the 4th question, so it is on soils. Match the soil type of Punjab in column A with their locations in column B. Right, so alluvial, sandy, loamy, saline, alkaline soil ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ. सो पॉज करके इस आंसर ਨੂੰ मार्क करो. सो alluvial soil is found throughout the Punjab. Sandy is found in parts of Firozpur, Bathinda, Mansa. Cotton cultivation ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Loamy central Punjab ਵਿੱਚ intensive agriculture ਦਾ region ਹੈ. The saline alkaline soil is problematic and it is found in patches in the Malwa region. So question ही ਇੱਦਾਂ framed ਹੈ कि A1A 2B है ना, इदा फ्रेम्ड है क्वेश्चन. सो साडा आंसर इज ए. एंड लास्ट जिहड़ा साडा क्वेश्चन है दैट्स वेरी सिंपल. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद पंजाब? हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी. आई थिंक ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पंजाब तुहानू पता है शेयर्स इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान विच इज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर. शेयर्स इट बॉर्डर विद 3 स्टेट्स. केड़िया 3 स्टेट्स ने? हिमाचल प्रदेश, दैन यू हैव हरियाणा, दैन यू हैव राजस्थान, एंड 2 UTs चंडीगढ़ एंड JNK. तो ये केड़ा नहीं है ऑप्शंस विच मतलब ऑप्शन से जोड़ा गलत है दैट इज यूपी. सो दिस इज अ मैप, टेक अ नोट ऑफ इट. राइट, सो टोटल 5 स्टेट्स यूटीज नाले बॉर्डर शेयर करता है. लास्ट विच अगेन रैपिड रिविजन राउंड के बारे में कहना चाहूँगी. कल तो शुरू हो रहा है इन्वायरमेंट, असी 2 दिन पढ़ांगे एंड यू विल लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द UPSC फैकल्टी दैट इज अवेलेबल इन इंडिया एट अ प्राइस विच इज़ वेरी कंपेटिटिव. सो मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड डू मैंशन योर स्कोर इन द कॉमेंट्स बिलो. कोई डाउट है तो वो भी मेरे तो ज़रूर पूछ लेना. थैंक यू सो मच.